اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے لاہور سے، جہاں پر کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت لاہور میں پی ایس ایل میچز انتظامات کے لیے اہم اجلاس ہوا۔ سی سی پی ایل لاہور غلام محمود ڈوگر کی بھی خصوصی شرکت۔ پاکستان سپر لیگ کے 14 میچز لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کا کہنا ہے کہ کمشنر لاہور نے 10 مارچ تک 22 مارچ پی ایس ایل میچز کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا اور پی ایس ایل میچز کے لیے 5 پارکنگ سائٹس شائقین کے لیے مختص کر دی گئی ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف میٹرو ون نیوز جواد شاہ سے۔ جواد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت لاہور میں پی ایس ایل میچز انتظامات کے لیے اہم اجلاس بلایا گیا، جس میں لاہور پولیس کے سربراہ سی سی پی ایل لاہور غلام محمود ڈوگر نے بھی خصوصی شرکت کی۔ پاکستان سپر لیگ کے 14 میچز جو ہیں لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے، جس میں کمشنر لاہور نے یہ بھی آگاہ کیا کہ مارچ پی ایس ایل میچز کے انتظامات کا خود میں جائزہ لوں گا، جس پر پارکنگ اور 5 پارکنگ سائٹ جو ہے شائقین کے لیے مختص ہوگی۔ دوران میچز قذافی کے گرد اور ٹیموں کے روٹس کو مکمل طور پر جو ہے وہ روشن کیا جائے گا، جس میں پی سی بی کے مطابق 50% شائقین جو ہے اسٹیڈیم میں میچ دیکھ سکیں گے۔ داخلی قطاروں اور اسٹیڈیم میں کووڈ کے لیے سماجی فاصلے کا جو ہے عمل درآمد جو ہے اس کو چیلنج سمجھا جائے گا۔ کسی بھی شائقین کرکٹ کے ماسک کے بغیر جو ہے اسٹیڈیم میں انٹری نہیں کر سکتے۔ میچز کے کمپیئرز کو کووڈ آگاہی کا پیغام دیں، اور جس میں سی سی پی لاہور نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اسٹیڈیم میں سیف سٹی اتھارٹی اور ذیلی سطح پر سی سی ٹی وی مانیٹرنگ بھی ہوگی، جس پر عارضی ہسپتال قائم کر دیے گئے ہیں۔ ریسکیو کی گاڑیاں بھی جو ہے وہاں پر موجود جو ہوں گی، جس پر ڈی سی لاہور مدر سر ریاض اور ملک جو تھے انہوں نے بھی آگاہی مہم کا جو آغاز شروع کر دیا، جس پر ڈی آئی جی ساجد کیانی سی ٹی لاہور اور ایس پی کینٹ سعد عزیز اور ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن اجمل نے بھی خصوصی شرکت کی، اور جس پر اے سی سید منور بخاری سمیت پی سی بی پروٹوکول، این سی ایل ریسکیو رینجرز اور تمام لیڈ محکموں کی جو ہے وہ شرکت جو ہے وہاں پر موجود، اور اہم اجلاس جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ جی یہ بتائے گا کہ پارکنگ کے کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ جی، پارکنگ کی جو ہے اس کے لیے انہوں نے قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد ٹیموں کے جو روٹس مختص کیے ہیں، وہاں پر پارکنگ جو ہے سائٹ جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے۔ پی ایس ایل میچز کے لیے 5 پارکنگ سائٹ جو ہیں وہ سائٹ پر جو ہے گراؤنڈ کے سائڈ پر ایک کھلا میدان ہے، وہاں پر مختص کر کے پارکنگ ایریے کو قذافی اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے اور فیس سیکیورٹی کی مدد لی جائے گی، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے داخلی جو ہے فضائی جو ہے اس کو سیکیورٹی کو دیکھا جائے گا۔ داخلی کی طور پر اسٹیڈیم میں جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے لسٹ کر دیے گئے ہیں، اور سی سی ٹی کی مدد سے سیکیورٹی کے جو متبادل راستہ ہیں اور ایمرجنسی پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی اور ضلعی سطح پر سی سی ٹی وی مانیٹرنگ بھی جو ہے وہ کمشن لاہور کی صدارت میں دیکھی جائے گی۔ جی اچھا جواد، یہ جو پی ایس ایل کے دوران کرونا کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، شائقین کتنی تعداد میں آ سکتے ہیں اور ایس او پیز کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ جی، داخلی طور پر اسٹیڈیم میں کووڈ اور سماجی فاصلے کو عمل درآمد کے لیے سی سی پی لاہور نے اور کمشنر لاہور نے ہدایت کی ہے کہ اس کو جو ہے سماجی جو ہے سوشل ڈسٹینس رکھا جائے، جس کو کھلا چیلنج کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میچ کے دوران کمپیئرز کو کووڈ آگاہی کا پیغام بھی ساتھ ساتھ دیا جائے گا۔ لائن ٹکٹ پر ضروری ماسک تحریر کر کے لگا دیے گئے ہیں۔ کمشن لاہور کی بہت سخت ہدایت دی گئی ہے کہ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے فاصلے کو ہر ناممکن فیصلے کو ممکن کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جواد شاہ ڈپٹی بیورو چیف ہمیں آگاہ کر رہے تھے لاہور میں ہونے والے پی ایس ایل میچز کے حوالے سے، جہاں پر کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت لاہور میں پی ایس ایل میچز انتظامات کے لیے اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی بھی خصوصی شرکت ہوئی، اور پاکستان سپر لیگ کے 14 میچز لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے، جبکہ کمشنر لاہور نے 10 مارچ سے 22 مارچ تک پی ایس ایل میچز کے انتظامات کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ پی ایس ایل میچز جو کہ لاہور میں منعقد ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں مختلف اقدامات پر غور کیا گیا، اور پی ایس ایل میچز کے لیے 5 پارکنگ سائٹس بھی مختص کی گئی ہیں، اور شائقین کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس میچز کو انجوائے کر سکیں۔ دوران میچز قذافی اسٹیڈیم کے گرد اور ٹیموں کے روٹس کو مکمل طور پر روشن کیا جائے گا۔
शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। और शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर आपको खबर देंगे हब से, जहां पर 10 दिनों से लापता नूरुल्लाह की गुमशुदगी का मामला हब पुलिस ने हल कर लिया है। हमजुल्फ ने पैसों के लालच में आकर कत्ल कर दिया, मकतूल की लाश को घर के सहन में दफन कर दिया और मकतूल की जेब से 10 लाख रुपए निकाल लिए। हब सिटी पुलिस ने ब्लाइंड केस में बारीक बीनी से तफ्तीश करके मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार करके नाश को बरामद कर लिया। हब पुलिस ने 10 दिनों से गुमशुदा अल्लाह नूर के मामले को हल कर लिया है। मकतूल का कातिल अपना ही हमजुल्फ निकला। मकतूल अल्लाह नूर, जो कि कराची नॉर्दर्न बाईपास का रिहायशी है, 16 फरवरी को अपने काम से कोयटा गया हुआ था, जो कि वापसी 20 फरवरी को अपने प्लॉट के मुबल्लिग 10 लाख रुपए लेकर वापस हब पहुंचा। मुलजिम ने रजा खान से पैसे के लालच में आकर मकतूल अल्लाह नूर को सोते हुए कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया और मुलजिम ने मकतूल को अपने ही घर के सहन में दफन कर दिया। मुलजिम ने वारदात के बाद मकतूल की जेब से 10 लाख रुपए निकाल लिए और मकतूल का मोबाइल फोन बंद करके सिम निकालने के बाद मोबाइल को गिडानी जाकर समंदर में फेंक दिया था। मकतूल की गुमशुदगी के बाद उनके भाई ने पुलिस में इत्तला दी कि जिसके बाद हब सिटी के SHO अताउल्लाह नुमानी ने अपने टीम के हमरा इस केस पर तफ्तीश शुरू की और मुलजिम रजा खान को शामिल तफ्तीश करने के बाद उससे पूछगछ की तो मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया और बताया कि उसने 21 फरवरी को मुगवी अल्लाह नूर को अपने घर के सहन में दफन किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में खुदाई करके मगवी अल्लाह नूर की कटी हुई नाश बरामद कर ली। नाश के साथ आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद हुई। और अब आपको खबर देंगे सिब्बी से, जहां मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी बलोच कल्चर डे शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है। बलोच कल्चर डे के हवाले से जिरगा हाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं सनाउल्लाह धाबाल से। सनाउल्लाह, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुल्क भर की तरह सिबी में भी बलूच कल्चर डे जोश खरोश से मनाया जा रहा है। बलूच कल्चर डे के हवाले से सिबी में जिरगा ऑडिटोरियम में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद आई, उनसे बात करते हुए इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, हर साल की तरह 2 मार्च को बलोच अक़वाम ने भरपूर तरीके से बलोच कल्चर डे मनाया है। बलोच कल्चर अमन, इताद और वादे का नाम है। बलोच कल्चर डे के हवाले से आज सिबी में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की और बलोच भाइयों से इज़हार यकजहती की। बलोच कल्चर बलूचिस्तान में तमाम अक़वाम में रहने वालों का कल्चर है। इसी हवाले से जामोट, सिंधी, सरेकी, बलोच, पश्तून बलोचों के साथ बलोच कल्चर डे मना रहे हैं। और बलोच कल्चर अमन बहादुरी का नाम है। बलोच एक रवायात का नाम है। बलोच कल्चर एक बेहतरीन कल्चर है। बलोच कल्चर कमेटी ने एक बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया है। से आगाह किया। और अब आपको खबर देंगे जैकबाबाद से, जहां नौजवान को कत्ल करने के खिलाफ नौजवान इत्तेहाद सिविल सोसाइटी के अतराफ से जैकब के तहसील ठल के प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जैकबाबाद के डंगर मोहल्ला में गुज़िश्ता रोज नौजवान की नाश बरामद हुई, जिसके खिलाफ नौजवान इत्तेहाद सिविल सोसाइटी ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए जैकबाबाद के तहसील ठल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। कत्ल करके उसको लाश को जला दिया। उसके वारसों में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज आई, उनसे पूछते हैं उनका क्या ख्याल है। ज़िले जैकबाबाद में ये बदतरीन वाक़या है कि पहली मरतबा किसी हिंदू को कत्ल करके जलाकर और उसको बोई में बंद करके लाश फेंकी गई है। हम जनाब SSP साहब, जैकबाबाद DC साहब और सिंध इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि जो भी कातिल हैं महेश कुमार के, उनको गिरफ्तार किया जाए। वाक़या पेश आया है वो इंसानियत को शर्मसार करने का वाक़या है। एक आदमी के ऊपर तशद्दुद करके उसका बोरी में लाश डाल के उसको जलाया गया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। SSP साहब को चाहिए कि इस वाक़े का सही और साफ शफाफ इंक्वायरी करके जो असल कातिल हैं उनको बेनकाब करे, जैसे ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आ सके। जैसे हिंदू बरादरी का और किसी और कम्युनिटी का किसी का भी जो मतलब होता है कि गैर महफूज रहना, अपने आप को गैर महफूज समझना, वो दूर हो जाए। ये महेश कुमार का जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक नौजवान को जिस तरह उनको अगवा करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बना के उसे कत्ल कर दिया गया,
ये इंसानी नाते से देखें तो एक भयानक किस्म का वाक़या है और इसके जो पीछे मुहरकात हैं, उनके जो असरात हैं, एक पूरी कम्युनिटी को अपने लपेट में ले लेती है और उससे एक हिंदू कम्युनिटी अपने आप को गैर महफूज समझती है। तो जी देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं, जितना पाकिस्तान पे हम मुसलमानों के हकूक़ हैं उतने ही हमारे हिंदू भाइयों के हैं। हमारे जैकबाद जो अंदरूनी सिंध का एक इलाका है, वहाँ पे ना हमारे हिंदू भाई ताजर महफूज हैं, ना उनके कारोबार महफूज हैं, ना उनके बच्चे महफूज हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे कुदरत ने बहुत दिलफरेब मौसमों से नवाजा है। कभी मौसम सरमा है तो कभी मौसम गर्मा, कभी खिज़ां तो कभी बहार। सर्दियों की तवील उदास खामोशी के बाद बहार का खूबसूरत और दिलफरेब मौसम पूरी फिजा को बेशुमार फूलों की खुशबुओं और रंगों से मअत्तर और रंगीन कर देता है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारून आबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। बहार खुशबू और रंगों का मौसम है। फरवरी के इख्तिताम और मार्च के अवाइल में जब इस खूबसूरत मौसम का आगाज होता है तो गोया जमीन का रंग ढंग ही बदल जाता है। पार्कों और घरों में खिले फूल एक अलग ही नज़ारा पेश करते हैं। बड़ी बड़ी शाहराहों के गिर्द खिले फूलों के तख्ते धुएं और ट्रैफिक अज़दहाम में भी ज़हनो दिल को तरोताज़गी देते हैं। बहार का मौसम खुदा का दिया हुआ वो तोहफा है जिसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। ये मौसम अपने साथ रंगों और फूलों की बारात लेकर आता है जिसकी खूबसूरती से हर इंसान अपने अंदाज में लुत्फ अंदोज होता है। फिजा में बिखरे रंगों की मुनासबत से मौसम बहार में खवातीन मलबूसात के लिए ज्यादातर इन्हीं शौक रंगों का इंतखाब करती हैं। मौसम बहार जहाँ बागों को रौनक बख्शता है, वहाँ ये हसीन मौसम रवैयों और मजाजों में भी कुदरती तौर पर एक खुशगवार तब्दीली लाता है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारून आबाद। और आर्ट्स काउंसिल ओकाड़ा में पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम डिवीज़न और ज़िले की सतह पर टैलेंट शो हुआ और इस मुकाबलाजात मुनक़्क़िद हुए जिसमें खत्ताती, पेंटिंग, गायकी, फ़नून लतीफ़ा समेत दीगर मुकाबले हुए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फुरकान अहमद की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम डिवीजन और जिला की सतह पर टैलेंट हंट मुकाबलाजात मुनक़्क़िद करवाए गए। टैलेंट हंट प्रोग्राम में जिसमें खताती, पेंटिंग, गायकी, फनून लतीफ़ा समेत दीगर मुकाबलाजात मुनक़्क़िद हुए। प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर आमिर अतीक खान, रेजिडेंट डायरेक्टर साहिवाल आर्ट काउंसिल सैयद रियाज हमदानी और असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट काउंसिल हमाद अहमद चीमा थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर आमिर अतीक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम अपनी नौयत का इंतहाई अहम प्रोग्राम है जो पंजाब का बिलखसूस और पाकिस्तान का बिलअमूम सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। हुनरमंद तालिबे इल्म और मकामी फनकार पूरे पंजाब में अपना लोहा मनवाएंगे। ओकाड़ा के ज़रखेज़ ज़मीन का बासलाहियत फनकार अपने हुनर से अपना और अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। पेंटिंग के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खसूसी बच्चे हसनैन रफीक जो कि माजूरी के बावजूद अपने पाँव से पेंटिंग कर रहा था, खसूसी तौर पर हौसला अफजाई की गई। रेजिडेंट डायरेक्टर साहिवाल डिवीजन, असिस्टेंट डायरेक्टर ओकाड़ा आर्ट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर आमिर अतीक की जानिब से पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के ओकाड़ा में इनेकाद के लिए तमाम सहूलियात की फराहमी और इंतजामी अफसरान की जानिब से ताउन पर इनका भरपूर शुक्रिया अदा किया। फुरकान अहमद, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज। और शहरनामे का सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद और अब आपको खबर देंगे कोटद्दू से, जहां पर बड़ी खबर आई है आपको, जहां कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिम शाह सवार को जुर्म साबित होने पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। मुल्जिम शाह सवार ने 2018 में अपनी बीवी नाजिया को जायदाद के लालच में कत्ल किया था। आपको आगाह करें कोटद्दू से, जहां पर चौक सरवर शहीद के मुल्जिम शाह सवार नामी नौजवान जिस पर 302 की FIR दर्ज थी, जिस पर आज सेशन कोर्ट जज कोटद्दू में समाअत हुई, जिसमें मुल्जिम शाह सवार को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद बामुशक्कत कैद के बाद एक बार फांसी दी जाएगी। केस की समाअत करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आसमा तहसीन ने सजाए मौत का फैसला सुनाया। हवाला देख ली मगर बाज ना आया। आरिफ वाला के नौजवान ने एक और जहाज बना डाला। उड़ने का वक्त आया तो पुलिस आड़े आ गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं राना अता फरीद इस रिपोर्ट में।
हालांकि मिडिल पास बाहिम्मत नौजवान मोहम्मद फैयाज ने हवालात देख ली मगर हवाओं में उड़ने के ख्वाब की तकमील से पीछे ना हटा। 2 साल बाद एक और नया जहाज बना लिया जो पहले बनाए गए जहाज से ज्यादा एडिटेड और पावरफुल है। बाहिम्मत नौजवान फैयाज ने जहाज तो बना लिया मगर जब रन टेस्ट का वक्त आया तो कानून नाफिज करने वाले इदारे फिर हरकत में आ गए और मिडिल पास इंजीनियर को संगीन मुकदमात दर्ज करने की धमकियां देकर खामोश करवा गए। 2019 में भी इस देसी इंजीनियर फैयाज ने जहाज बनाकर उड़ान भरी तो उसे जेल की हवा खाना पड़ी थी। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है, आप सब लोग मुझे जानते होंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने एक जहाज बनाया था, तो जब उसकी मैं फ्लाइंग के लिए गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मेरे ऊपर FIR भी होगी एंड कीप डन गुड वर्क का सर्टिफिकेट दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप फ्लाइंग कर सकते हैं, मैंने उनको बताया बिल्कुल जी। फिर मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मशाक एयरक्राफ्ट है मुझसे उन्होंने 45 मिनट की जो ना वो फ्लाइंग करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से मैंने वो फ्लाइंग किया। फिर मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्लाइंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जो मेरे पास अभी भी मौजूद है। फैयाज का अरबाब इख्तियार से मुतालिबा है कि हुक्काम नोटिस लें वरना वो जहाज एहतजाज। और कहरड़ पक्का से आपको खबर दें जहां इंतजामिया का जाली खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कहरड़ पक्का नईम बशीर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां जावेद इकबाल का छापा जाली खाद की ट्रॉली पकड़ ली। कमिश्नर कहरोड़ पक्का नईम बशीर ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी मियां जावेद इकबाल, ज़राअत ऑफिसर शहद जावेद मार सुहेल अख्तर और पुलिस के हमरा रामकली के पतन के करीब गाड़ी को रोका तो उस पर 41 बोरी जैली DAP खाद रख कर ले जाई जा रही थी, जिन्हें गिरफ्तार करके कहरोड़ पक्का थाना सदर लाया गया और मुकदमा का अंदराज कर दिया गया। मुखबिर मोयुद्दीन ने बताया कि कबल अजीज जहूर अहमद ने मुझे भी 50 बोरी जैली खाद की दी थी जिससे मेरी फसल का शदीद नुकसान हुआ था। अब भी किसानों को फरोख्त के लिए जैली खाद ले जाई जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का नईम बशीर ने बताया कि सैंपल फोरेंसिक के लिए जो है भिजवा दिया गया है। रिजल्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, सजा और जुर्माना मौके पर भी किया जाएगा। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खैरंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पक्का। और लियाकतपुर के सहाफ़ी हाफिज अब्दुल गफार पर दहशतगर्दी साबित न होने पर बहावलपुर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फाजिल जज नासिर ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात 7ATA को ख़त्म कर दिया। मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान बोसन की इस रिपोर्ट से। जी बिल्कुल, लियाकतपुर के सहाफ़ी हाफिज अब्दुल गफार पर खानपुर के फॉरेस्ट गार्ड मोहम्मद अली अंजुम, गुलाम मोइनुद्दीन शाह, मुरीद हुसैन, रशीद अहमद और नवाज नियाजी ने दीगर सरकारी मुलाजमीन के साथ मिलकर मनसूबाबंदी करके भत्ताखोरी, दहशतगर्दी और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा 140/18 बजुर्म 186, 386, 7ATA पे थाना ए डिवीज़न रहीम यार खान में दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवा लिया था। गिरफ्तारी के दौरान सहाफ़ी को मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज भी किया जाता रहा कि महकमा जंगलात के मुलाजमीन के खिलाफ दी गई नैब और एंटी करप्शन के मुख्तलिफ दरखास्तों से दस्तबरदार हो जाए। इसके बावजूद सहाफ़ी अब्दुल गफार ने अपने मौके पर डटे रहे। पुलिस ने 15 दिन का जुडिशल रिमांड हासिल किया और उसके बाद सेंट्रल जेल बहावलपुर चलान कर दिया। 2 माह जेल में गुजारने के बाद जमानत पर रिहाई मिली। सहाफ़ी अब्दुल गफार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुझे पाबंद सलासिल कराने में महकमा जंगलात खानपुर के साथ म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर के मुलाजमीन भी पेश थे। 2000 रुपये फी मुलाजिम चंदा करके मुनज़्ज़म तरीके से मुझे झूठे मुकदमात में फंसाया गया था। इसके बावजूद आज फतह हक और सच की हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित न होने पर मुकदमात से 7ATA की दफात खत्म कर दी है, जबकि दूसरी जानिब जंगलात के तकरीबन 1 लाख दरख्त गायब करने पर 96 करोड़ रुपए की करप्शन के 4 अलग-अलग रेफरेंसेस नैब मुल्तान में दायर किए जा चुके हैं, जिसमें जंगलात के 56 करप्ट मुलाजमीन जमानत पर हैं। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ मोहम्मद इमरान बोसन, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। और फतेहपुर में साबिक MPA चौधरी अल्ताफ हुसैन की काविशों और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के हुक्म पर DC लिया असफर जिया ने सब तहसील ऑफिस फतेहपुर को फंक्शनल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। MPA चौधरी अल्ताफ हुसैन की काविशों और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के हुक्म पर DCO लिया असफर जिया ने सब तहसील ऑफिस फतेहपुर को फंक्शनल करने के अहकाम जारी किए, जिस पर 2 रोज काम जारी रहने के बाद सियासत की नजर होता नजर आ रहा है। अमला जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अधूरा काम छोड़कर गैब ताजर हजरात और शहरी हलकों की तरफ से भरपूर मजम्मत और फिर सब तहसील ऑफिस को फंक्शनल करने की अपील की गई है। इस मौका पर चौधरी अल्ताफ हुसैन ने मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए कहा
रहीम आज गल्ला मंडी फतेहपुर में अंजमन ताजरान के दोस्त और अहलियान शहर बाशमूल में हम इकट्ठे हुए हैं और ये एक एजेंडा ये था कि फतेहपुर जो सब तहसील के हवाले से पिछले दिनों में डीसी साहब यहाँ फतेहपुर तशरीफ़ लाए और एसी साहब के ज़िम्मे लगाया गया कि 7 दिन के अंदर इसको फतेहपुर सब तहसील को फंक्शनिंग किया जाए। तो वो हम देख रहे हैं कि वो सुस्त रवि का शिकार हो रही है, अनजाने में ये नहीं पता कि किस वजह से। तो इसी सिलसिले में ये अजलास ने आज फैसला किया कि कल वफद की शक्ल में डीसीओ साहब से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, और क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के सरबराह हैं तो उनसे हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फतेहपुर के अवाम का ये जो मंसूबा है इसको चालू किया जाए और इसको फंक्शनिंग किया जाए ताकि अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके और इसको फिल फौर जो है इस पर अमल दरामद कराया जाए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना यही था कि सब तहसील को जल्द फंक्शनल किया जाए। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया जी। और बिहाड़ी से आपको खबर दें, जहां खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सेशन कोड 11 और सिविल कोड 11 के दरमियान जश्न बहारा सुलेमान बेग टेब बॉल क्रिकेट मैच खुर्शीद अनवर स्टेडियम में खेला गया। सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सेशन कोड 11 और सिविल कोड 11 के दरमियान जश्न बहारा सुलेमान बेग टेबल क्रिकेट मैच खुर्शीद अनवर स्टेडियम में खेला गया, जो सिविल कोड 11 ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 25 रन से कामयाबी हासिल की। खुर्शीद अनवर स्टेडियम में जुडिशरी की 2 टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। मैच के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज मसरूर अनवर, सीनियर सिविल जज हदायतुल्लाह शाह, सीनियर सिविल जज शहजाद अनवर, एडिशनल सेशन जज गुलाम शबीर गिल, सीनियर सिविल जज कजाफी बिन जायर, सिविल जज अनायत अली गोंदल, सिविल जज सादिक इमरान, सिविल जज राजा जाहिद हुसैन थे, जबकि सिविल नाजर जमील मसीह, जाहिद खान बरकी, राना मोहम्मद शाहिद, काजी वसीम रजा के अलावा जुडिशरी के दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे और टीमों का हौसला बढ़ा रहे थे। सेशन कोड 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। सिविल कोड 11 की टीम ने मुकर्रर 8 ओवर्स में 93 रन बनाए, जबकि इसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। सिविल कोड 11 के बैट्समैन अकील वजीर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 53 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विकेट कीपिंग करते हुए विकेटों के पीछे 3 कैच भी पकड़े, जिस पर उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। जवाब में बैटिंग करते हुए सेशन कोड 11 की टीम मुकर्रर ओवर्स में 77 रन बना सकी रही, उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए। सिविल कोड 11 25 रन से मैच के फातह रही। इस मौका पर शायकीन ने दोनों टीमों की जबरदस्त हौसला अफजाई की, जबकि जुडिशरी के जजीर साहबान ने टीमों में इनामत तकसीम किए। इत्तका देने वाले रोजमर्रा के मामूलात के बायस खेलों की ऐसी सरगर्मियां इंसान में मुस्बत सरगर्मियां पैदा करती हैं, जिससे इंसानी जिस्म में तवानाई के साथ साथ काम करने का जज्बा भी उजागर होता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रऊफ अरशाद, मेट्रो 1 न्यूज़ बिहाड़ी। और पतोकी में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 22वें सालाना उर्स की तकरीबात कसूर में शुरू हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं चौधरी अजहर तुफैल की इस रिपोर्ट में। मुहद्दस कसूरी वजह शोहरत और तहरीक ख़त्म नबूवत में नुमाया किरदार, ये रूहानी और बुज़ुर्ग मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ बरतानिया से आए सज्जादा नशीन मुहद्दस कसूरी साहबजादा मुफ्ती अख्तर अली कादरी, मुफ्ती इरशाद अली कादरी और दीगर ने मज़ार शरीफ को गुस्ल देकर किया। उर्स मुबारक के रूहानी व वजदानी फैज़ो बरक़ात के लिए मुनक्कद तकरीब में मुल्क के जय्यद उलमा कराम ने इस अजीम दरवेश मुहद्दस कसूरी के किरदार पर रोशनी डाली। पीर सैयद फिदा हुसैन शाह, मुफ्ती नसर कादरी, मौलाना नवाज बशीर जलाली, पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी और मुलाजम हुसैन डोगर समेत उलमा अहले सुन्नत ने बुजुर्गाने दीन की खिदमात को खोल कर लोगों के सामने रखा। सज्जादा नशीन मुहद्दस कसूरी हजरत मुफ्ती अख्तर अली कादरी ऑफ बरतानिया ने पैगाम देते हुए कहा, मेरा इस मौका पर पैगाम यह है कि ये बुजुर्गान दीन हकीकत में लोगों के दिलों पर राज करते हैं और ये चाहते हैं कि ये राज हम कैसे करते हैं। उसकी वजह ये बताई कि इसके राज करने की वजह ये है कि हमने अपना ताल्लुक़ अपने रब से जोड़ा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से जो कुर्ब और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हमें नसीब हुआ है, उसके तवस्सुल से हमारे दिलों पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। कसूरी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में साहबजादगान समेत मुल्क भर से आशिकान रसूल न सिर्फ महाफल में शिरकत कर रहे हैं बल्कि दरबार शरीफ पर हाजिरी देकर दिल की तस्कीन भी कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर खुर्रम शहजाद के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तोकी।
اور شیخوپورہ میں سول سوسائٹی اور سول ڈیفنس کے عالمی دن کے موقع پر ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود نے کی. شیخوپورہ میں سول ڈیفنس کے عالمی دن کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود نے کی، جبکہ ریلی میں ڈپٹی کمشنر محمد اسکر جویا، ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس محمود حسین گل، چیف وارڈن سول ڈیفنس الیاس گجر اور سول ڈیفنس کے رضاکاروں سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. سول ڈیفنس کے والنٹیئر نے بھرپور طریقے سے شرکت کی. یہ ریلی ہماری آج ڈی سی آفس شیخوپورہ سے نکل کے ایس پی چوک تک اختتام پذیر ہوئی اور وہاں پہ لگے اسٹال کا صوبائی وزیر نے معائنہ بھی کیا. کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے. تو اس طرح یہ اپنی نوعیت کے بہترین واک ریلی اور یہ انتظامات جو ہیں سول ڈیفنس کے حوالے سے وہ کیے گئے. ڈیفنس کے رضاکاروں سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کا مقصد شہریوں کی دفاعی کی تربیت سے آگاہی کے ساتھ حادثات کے دوران اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے رضاکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. امانت چودھری، میٹرو ون نیوز، شیخوپورہ. اور ایک ماہ قبل سرعام تشدد کا شکار ہونے والے علی پور کا رہائشی عبدالقیوم نظام عدل سے مایوس ہونے لگا. 7 جگہوں سے جسم کی ہڈیاں توڑنے والے ملزمان دندناتے پھر رہے ہیں. مدعی کے شدید نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مزید جانتے ہیں علی پور سے اپنے نمائندے اسامہ نظر سے. جی اسامہ، کیا کہنا ہے عبدالقیوم کا؟ جی بالکل، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے علی پور کی جو عدالتیں ہیں ان کے قریب ایک شخص کو سرعام جو ہے اس پر قاتلانہ حملہ کیا اور تقریباً 8 سے 9 مسلح افراد جو تھے ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث ان کی جو ٹانگیں ہیں تقریباً 6 جگہ سے فریکچر ہوئی، ہاتھ کا گٹھا فریکچر ہوا. اس کے بعد جو ہے پولیس والوں کی طرف سے کیا کارروائی ہوئی اور عدالت میں کیا کارروائی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہیں. جی بھائی جان، بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کس نے مارا اور اب تک کی پولیس کی کیا کارروائی ہے؟ بھائی جان، گزارش یہ ہے جو میں گیا علی پور بٹھے تو سلیں گی نا اتھیں کر آ کریں تے موٹر سائیکلیں تے 3 بندے سوار ہیں آ کریں سریے بھی چاہیے ودن کار بھی نال پچھو آئیے اگو موٹر سائیکلان کے ماری نے پچھا کار آئی 9 بندے مسلح کسے کہیں کلو اینی راڈ ہیں سریے ہیں. انہیں آ کریں تے میرے نال تشدد کیتے، میرے کو اتھا کر مار کے سٹ گئے. 1122 والے کو کہیں نے فون کیتے، وہ آتے میرے کو چاہ گئے ہسپتال منتخب کیتا نے تے ان دی وجہ کر کے میرا کوئی قسم دا ایکشن نہیں کیتا گیا، جو کہ انہیں کو سیاسی جو ہے نا MNMP دی سپورٹ ہے. لہذا وہ عبوری کرے کہ چلے ودن وہ دن سا کو کچھ نہیں تھی دا، ساری پولیس سارا کچھ نہیں بگڑے دی. آپ نے ان سے سنا، ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہاں کے جو مقامی اقتدار کے اندر لوگ ہیں وہ بھی ان ملزمان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پولیس کی طرف سے جو ہے عدم دلچسپی ہے اور سست روی کا شکار ہے. ایک ملزم ایسا بھی ہے جو ابھی تک جس نے ضمانت بھی نہیں کرائی اور وہ سرعام اسلحہ لے کر پھرتا اور ان کو یہ دھمکیاں دیتا ہے کہ میں اگر تم نے صلح نہ کی اور اپنا کیس واپس نہ لیا تو میں نے ایک کو بھی مارا ہے. اور اسی طرح غازی خان فیصل رانا سے ان کا مطالبہ ہے کہ ملزمان کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جی بہت شکریہ. اور شہنامے کا اس وقت فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور سے آگاہی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.